it is clear that to sustain the uniform motion of the marble, no external force is required. External force means unbalanced force. It's not required. Yeah, it is required to change the motion of the marble. Okay, if the marble is moving, if we need to change its motion, if we need to change its direction, then only we require any unbalanced force. But if we need to keep it going, moving on with the same speed, with the same uniform motion, then we do not require to provide any external force. And with this only, Newton further studied Galileo's idea on force and motion and presented three fundamental laws that govern the motion of the object. The three laws are known as Newton's laws of motion. The first law of motion is stated as, इसी चीज़ को देखते हुए न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ दिया. क्या दिया कि मतलब इफ़ द बॉडी एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स या टेंड्स टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन unless compelled to change that state by an applied force. Okay, see the marble, it is moving in a straight line. Yes, okay, so he said that an object tends to remain in the state of rest or motion till any external force is applied to it, external unbalanced force is applied to it. This is only the law number 1 of motion. In other words, all objects resist a change in their state of motion. ओके, दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि सभी वस्तु जो है, जितने भी ऑब्जेक्ट है, दे टेंड टू रिमेन्स, दे लाइक टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. मीन्स अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेंगे, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेंगे, जब तक कि कोई इम्बैलेंस्ड फोर्स उन पर अप्लाई नहीं किया गया हो. मतलब कि वो चाहते हैं कि हम इसी अवस्था में रहें. मीन्स वो रेजिस्ट करते हैं किसी भी चेंज को. इन अदर वर्ड, ऑल ऑब्जेक्ट रेजिस्ट अ चेंज in their state of motion. In an qualitative way, the tendency of undisturbed object to stay at rest or keep moving with the same velocity is called inertia. इसी को हम inertia कहते हैं. It is inertia क्या है? The tendency है, tendency of an object to remain continue in the state of motion or rest until or unless any external force is applied on it. ये inertia ही है. इसीलिए हम फर्स्ट लॉ को द लॉ ऑफ inertia भी कहा जाता है. inertia मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट वो रेस्ट में या मोशन में ही रहना पसंद करता है जब तक कि कोई बाहरी फोर्स, इम्बैलेंस्ड फोर्स उस पर काम ना करे. दिस इज़ inertia. एंड ये जो है, यही इसका फर्स्ट law is same as the law of inertia. So it is known as the first law of Newton is known as the law of inertia. That is why the first law of motion is also known as the law of inertia. Now you will study about the second law. Okay, now next read here certain experiences that we come across while traveling in a motor car. So जब हम inertia की बात करते हैं तो जैसे कि आप बस में जब ट्रैवल कर रहे हो, आप मूविंग बस के अंदर बैठे हो, व्हेन द बस ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक, जब वो ब्रेक अप्लाई करता है तो जो पैसेंजर है ही टेंड्स टू फॉल फॉरवर्ड. हम क्या होते हैं, हम सामने की तरफ गिरते हैं. ऐसा क्यों होता है, हमें सामने का जर्क क्यों होता है? बिकॉज व्हेन द बस वॉज मूविंग विद दैट आवर बॉडी वॉज ऑल्सो मूविंग. ओके, बट आवर फीट वॉज टचिंग द बस फ्लोर और हमारा फीट रेस्ट था, बट हम मूविंग कर रहे थे. बस के साथ साथ हमारा बॉडी भी मूव हो रहा था. बस का जो ब्रेक लग गया, लेकिन हमारा बॉडी जो है उसको रेजिस्ट किया, वो कंटिन्यू रहा मोशन में, इसलिए हम सामने की तरफ गिरने लगते हैं. या फिर अगर आप रेस्ट में बैठे हो, एक बैग गाड़ी स्टार्ट कर दिया तो हम बैकवर्ड की तरफ गिरते हैं. तो बैकवर्ड की तरफ हम क्यों गिरते हैं? क्योंकि आवर बॉडी वॉन्ट टू बी इन द कंडीशन ऑफ रेस्ट ओनली. हम रेस्ट पे थे और एक बैग गाड़ी चल दी तो हम पीछे की तरफ गिर जाते हैं. ओके, सिमिलरली जब हम व्हेन वी शेक द ट्री, जब हम ट्री को शेक करते हैं तो ब्रांचेस से पत्ते गिरने लगते हैं. वाई द लीव्स फॉल फ्रॉम द ब्रांचेस? बिकॉज द लीफ वॉज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. और जब हम ब्रांच को मोशन में ले आए तो द टेंडेंसी ऑफ द लीव्स टू कंटिन्यू टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, because of that only the leaves start falling.
These are the reasons. These are the certain experiences that we come across while traveling in motor car can be explained on the basis of law of inertia. So यही है law of inertia में 3 laws होते हैं. एक होता है inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction. रेस्ट का समझ में आया, मोशन का समझ में आया. डायरेक्शन क्या है? जब भी कोई चीज़, जैसे आप कोई टर्न लेता है ऐसे, एक बैग अगर गाड़ी ऐसे टर्न लिया, देन व्हाट हैपन, वी फेल दिस साइड, हम इधर को गिरते हैं बिकॉज ये एक बैग इधर टर्न लिया बट आवर बॉडी वॉज गोइंग दिस वे. So this is the inertia of direction that makes us fall this side, opposite direction. तो ये सारी चीज़ जो हैं वो आप डेली ज़िंदगी में आप इसको एक्सपीरियंस करते हो. We tend to remain at the rest with respect to the seat until the driver applies a braking force to stop the motor car. With the application of brakes, the car slows down, but our body tends to continue in the same state of motion because of its inertia. ठीक है, हमारे inertia means the tendency to resist. So sudden application of brake may thus cause injury to us by impact or collision with panels in front. Okay, इससे क्या हो सकता है, हमें इंजरीज हो सकते हैं. Safety belts are worn to prevent such accidents. Now safety belts exert a force on our बॉडी टू मेक द फॉरवर्ड मोशन स्लोली. सो आप इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स से इसको पढ़ोगे. ओके, व्हेन अ मोटर कार मेक्स अ शार्प टर्न एट अ हाई स्पीड वी टेंड टू गेट थ्रोन टू द साइड. दिस कैन अगेन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया. अभी मैं बताई कि अगर वो टर्न लेते हैं तो फिर हम उधर गिरते हैं. सो ये सारे चीज़ जो इनर्शिया की वजह से होता है. नाउ इसे भी आप पढ़ोगे, समझ में आ जाएगा. वी टेंड टू कंटिन्यू आवर स्ट्रेट लाइन मोशन व्हेन एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड बाय इंजन टू चेंज डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द मोटर कार. वी स्लिप टू द साइड ऑफ द सीट ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ आवर बॉडी. जैसे कि हम ऐसे मूव करते जा रहे हैं बट वो एक बैग सडनली टर्न लिया तो हमारा बॉडी जो है वो ऐसे ही जा रहा था, वो चाहेगा कि हम ऐसे ही जाएं, इसलिए हम उधर को गिरते हैं. दिस आर द थिंग्स. कुछ एक्टिविटीज़ है, आप इसको पढ़ोगे. नेक्स्ट इज़ यू विल रीड दिस वन ऑल्सो रिगार्डिंग गैलीलियो गैलीली व्हाट ही डिड. एंड नेक्स्ट इज़ दैट, ये भी है एक्टिविटी, इसको आप पढ़ोगे और समझोगे. ओके, नेक्स्ट इज़ हियर इनर्शिया एंड मास. सो इनर्शिया एंड मास, मास आप समझते हो, मास एंड वेट आप पढ़े थे. मास जो है और इनर्शिया जो है वो आपस में किस तरह से रिलेटेड है. इफ़ वी इंक्रीज द मास then inertia also increases. Okay, inertia is directly proportional to mass. I is proportional to m. ओके, जैसे कि मान लो कि कोई लाइट थिंग है, उसे हम जब फेंकना चाहेंगे तो वो बहुत दूर जाके गिरेगा, बॉल बहुत दूर जाएगा. बट अगर सेम साइज़ का हम लोहे का बॉल ले लें, आयरन बॉल ले लें, तो उसे हम फेंक नहीं पाएंगे. वी कांट थ्रो दैट. ओके, वी कांट थ्रो दैट बिकॉज वो बहुत हेवी होता है. मीन्स अगर मास बढ़ जाए तो उसका इनर्शिया भी बढ़ जाएगा. ठीक है, और अगर मास कम हो जाए तो इनर्शिया उसका कम हो जाएगा. ऑल द एग्जाम्पल्स एंड एक्टिविटीज़ गिवन सो फार illustrate that there is a resistance offered by an object to change its state of motion. सभी एग्जाम्पल्स से हमें ये समझ में आया कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. इफ़ इट इज़ अ रेस्ट इट टेंड्स टू रिमेन इन द रेस्ट. इफ़ इट इज़ मूविंग इट टेंड्स टू कीप मूविंग. दिस प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनर्शिया. ओके, अब इसमें आप पढ़ोगे, डू ऑल द बॉडीज हैव सेम इनर्शिया. वी नो दैट इट इज़ ईजी टू पुश एन एम्प्टी बॉक्स देन द बॉक्स फुल ऑफ books. Similarly, if we kick a football, it flies away. But if you kick a stone of the same size with equal force, it is hard to move. We may, in fact, get an injury in our foot while doing so. Similarly, यहाँ आप एक्टिविटी में पढ़ोगे कि इनर्शिया जो है वो डिपेंड्स ऑन मास. अगर मास बढ़ गया तो उसका इनर्शिया भी बढ़ जाएगा. ओके, और ये क्वेश्चन आंसर आप कर लिए हो. नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ेंगे इसके बारे में, सेकंड लॉ ऑफ मोशन. ओके, थैंक यू.